Hello students, welcome to your 8th maths class. I am Jyoti Sachdeva from SGJ DAV School Haripura. Today we are doing our chapter 14 mensuration worksheet number 1. 7 question we already done. Today we will start from the 8th question. 8th sum is find the two parallel sides of a trapezium. Means we have to find the two parallel side whose area is given, that is 1.6 meter square. Altitude, that is height is 10 decimeter, and one of the parallel side is longer than the other by 8 decimeter. Firstly assume that one side, let one side को हमने assume किया x, then other side क्या बनेंगे, उससे 8 decimal more है decimeter, then we will add this, other side क्या हो जाएगी 8 पॉइंट. अब यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, that is 1/2 multiply a plus b into h, and now the one side, that is x, we assume that is a and this is b. Now this is in decimeter, 8 is also in decimeter, it means our sides are in decimeter, but area is in meter. लास्ट में हमने एक क्वेश्चन किया था तो हमें डेसीमीटर में गिवन थी साइड, तो हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसे क्या किया था, मल्टीप्लाई, नहीं सॉरी हमने किया था वहां पर डिवाइड. नाउ इन दिस मीटर से हमने क्या करना है, डेसीमीटर, सो वी विल मल्टीप्लाई इट. बट यहाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वहां हमने 10 से डिवाइड किया था, तो यहाँ हम 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों, यहाँ मीटर स्क्वायर है, इट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ क्या आ जाएगा 160 डेसीमीटर. ठीक है, तो नाउ फिल द वैल्यू, एरिया इज 160. नाउ 1/2 मल्टीप्लाई ए की जगह पर x, b की जगह पर x plus 8, एंड ऑन द प्लेस ऑफ h, दैट इज हाइट इज 10. Now solve this. 160 multiply 2 by 10 and x plus x, that is 2x plus 8. Now solve this. 16 to the 32 is equals to 2x plus 8. Now 8 इधर आके माइनस होगा, 32 माइनस 8 is equals to 2x, माइनस करेंगे that is 24 is equals to 2x. Now x is 24 upon 2, that is 12. It means length of A is 12 decimeter and length of B is 12 plus 8, that is 20 decimeter. Okay, now let's start the ninth sum. Ninth sum की statement क्या है, the cross section of a canal is इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रेपीजियम. क्रॉस सेक्शन मीन्स जो कैनाल की वो साइड्स हैं वो ट्रेपीजियम शेप की है. इफ द टॉप ऑफ कैनाल इज 15 मीटर वाइड एंड द बॉटम इज 8 मीटर. टॉप दिया हुआ है हमें 15 मीटर और बॉटम दिया हुआ है 8 मीटर वाइड, एंड द एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन, जो क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया दे दिया हमें 138 मीटर स्क्वायर. Find its depth. Depth means this one, that is we have to find the altitude. Let depth is x और h. h लेते हैं तो हम h ही ले लेते हैं. Depth is h. Area, that is 138 meter square, and A is equals to 15 meter and B is equals to 8 meter. Now apply the formula, area of trapezium, that is 1/2 into A plus B into H. Fill the value. Area is 138 meter square. 1/2 into A means 15 plus 8 into H you have to find. This is 23. 1/2 into 23 into H. Now solve it. Take the numerical numbers in the other side. Now check it on the table of 23.
देखो 1 प्लेस 8 है तो हम 6 पे चेक करेंगे क्योंकि 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 1 13. इट मीन्स 6 पर कट होता है. नाउ 6 2 ज़ा 12. इट मीन्स एच की वैल्यू क्या आ गई 12 मीटर. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन हम करेंगे सबसे एंड पर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सम. एंड लेट्स सी द 11th सम. द लेंथ्स ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इन द रेशियो. रेशियो में है तो लेट कॉमन रेशियो क्या आ जाएगी x, एंड a क्या बन जाएगी देन 4x एंड b क्या बन जाएगी 7x. साइड्स आ गई हमारे पास. Now the height of trapezium h is given, that is 14 meter, and the area is also given, that is 385 meter square. Now apply the formula of area of trapezium, that is 1 by 2 into a plus b into h. Area is 385. 1 by 2 into value of a is 4x and b is 7x. And height, that is 14. Now take the other things, numerical numbers on the other side and add these two numbers. 7x plus 4x, that is 11x. Now solve this. 2 1 जा 2 7 जा 7 के टेबल पर कट करेंगे. 7 1 जा 7 5 जा 35, 3 7 5 जा 35. Now 55 है. 11 इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड करेगा इसको. Now value of x is 5. It means value of a is 4 into 5, that is 20, and b is 7 into 5, that is 35. All the things are in meter, so 20 meter and 35 meter. Now let's see the next 12th sum. The perimeter of trapezium is, perimeter given है, perimeter of trapezium is 104 meter. And if non parallel sides are, अब parallel sides हमें given होती थी, अब यहाँ कौन सी given है, non parallel side. assume कर लो, let C A and B are parallel sides and C and D are non parallel side. Now assume that C is 18 meter and D is 22 meter, and its altitude means H is given, that is 16 meter. Now find the area. Area find out करना है, तो फर्स्टली हुई हाइट है हमें हमारे पास. पेरीमीटर से हम क्या करेंगे, ट्रेपीजियम इस शेप में होती है. अब ये A और B हमारी पैरेलल साइड है और ये हमारे पास C और D है. अगर हम A प्लस B प्लस C प्लस D करते हैं तो हमारे पास पेरीमीटर आता है. इस पेरीमीटर में से अगर हम C और D माइनस कर देंगे हमारे पास A प्लस B रहेगा. सो फॉर फाइंडिंग A प्लस B वी टेक पेरीमीटर माइनस C प्लस D. चाहे हम ये कर दें C माइनस D कर दें तो क्या आ जाएगा, 104 माइनस 18 माइनस 22. तो इसमें से माइनस करेंगे 20 और 130 और 140, क्या आ जाएगा 64. A प्लस B क्या आ गया हमारे पास 64 मीटर. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, दैट इज 1 by 2 इंटू A प्लस B इंटू H. 1 by 2 इंटू A प्लस B, दैट इज 64 एंड हाइट इज 16 मीटर. 32 और 32 और 16 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे. हमारी मल्टीप्लिकेशन क्या आई है, 412 मीटर स्क्वायर. नाउ लेट्स स्टार्ट द 10th सम. 2 पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम आर, 2 पैरेलल साइड्स गिवन है. अदर 2 साइड्स आर इक्वल, और दूसरी साइड्स क्या है, इक्वल, एंड द लेंथ ऑफ दीज इक्वल साइड्स इज 17 सेंटीमीटर. नाउ फाइंड द एरिया. फर्स्टली वी विल ड्रा द फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन. इस तरह हम फिगर ड्रॉ करेंगे. तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन लेंगे, यहाँ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे. देखो हमें पैरेलल साइड गिवन है 42 एंड 58, नॉन पैरेलल साइड 17 गिवन है. हम इस 17 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 17 सेंटीमीटर ही होगी, और यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे. जब
ये पैरेलल है इसके, तो इसके पैरेलल ये हमने पैरेलल ड्रॉ की तो ये 42 ही रह जाएगी। और 58 में से 42 माइनस करेंगे तो ये लेंथ उसके बराबर आ जाएगी 8, ये क्या आ जाएगी 16। अब जहां ये 17 है, ये 17 इट मीन्स एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बन जाएगी, तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। इट मीन्स ये क्या रह जाएगी 8 इंटू 8 की। तो फर्स्टली वी विल राइट इट इन ए प्रॉपर वे। अब डिटेल में हमने पहले लिखी कंस्ट्रक्शन की बी ई पैरेलल हमने एडी ड्रॉ की, ठीक है। फिर जो डी ई है 42 और ई सी क्या रहेगी 16। नाउ बी सी एंड ई इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। एंड फिर हमने क्या किया, एक बी एफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। इसके अंदर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि दिस इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। इट मीन्स ई एफ और एफ सी क्या आ जाएंगे इक्वल। अब ये क्या बन जाएगी बी सी एफ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो देन वी विल अप्लाई ए पाइथागोरस थ्योरम। इस राइट एंगल ट्रायंगल में दिस इज एच, दिस इज बी एंड दिस इज पी। अब ये परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास और ये पैरेलल साइड्स गिवन है, ये हाइट आ जाएगी। देन वी विल फाइंड दिस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देखो पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बी स्क्वायर। एच की वैल्यू 17 है और पी हमने ये परपेंडिकुलर लिया, बेस हमारे पास 8 है। 17 स्क्वायर दैट इज 289, पी स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर दैट इज 64। 64 इधर होके माइनस हो गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 225 और पी का वैल्यू निकालेंगे तो रूट क्या आ जाएगी वैल्यू 15। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ ट्रेपेजियम। 1/2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 42 एंड बी की वैल्यू 58 इंटू एच दैट इज फाइंड 15। नाउ 1/2 इनको प्लस करेंगे दैट इज 100 एंड देन 15, ये क्या आ जाएगा 15 5 7 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मीन्स 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? इस तरह के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू।